وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راولپنڈی میں نیشنل ایئر اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا۔ یہ منصوبہ ایویشن اسپیس سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق و ترقی اور اختراع کے فروغ کے لیے ضروری عناصر کا ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ نیشنل ایئر اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیاحت کے فروغ کے لیے سلام پاکستان برانڈ اور ای پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ ضروری ہے کہ دنیا کو پاکستان کے مشہور کن مقامات اور دلکش نظاروں سمیت اپنی تہذیب، ثقافت اور تمدن سے روشناس کرایا جائے۔ ایسے تمام ملکوں کے تجربات سے استفادہ کریں جن کا سیاحت کے شعبے میں ایک مقام ہے۔ اس شعبے کو ترقی دے کر کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ پیمرا ترمیمی بل 2023 کے پیچھے اچھی نیت ہے۔ انشاءاللہ یہ بل سینٹ سے بھی منظور ہوگا۔ پیمرا کو قانون اجازت دیتا تھا کہ وہ نواز شریف کو تقریر بند کر سکتا تھا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ صحافیوں کی آزادی کا تحفظ کیا۔ بل میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ بل تمام میڈیا ورکرز کے لیے ہے۔ اس پر 11 ماہ مشاورت کی ہے۔ یہ پبلک ڈومین کا بل تھا اور ہر وقت پبلک رہا۔ چیئرمین سینٹ نے میری درخواست پر بل قائمہ کمیٹی کو بھجوایا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ I move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Is it opposed? وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے پیمرا ترمیمی بل 2023 سینٹ میں پیش کر دیا۔ ہم نے میڈیا سینسرشپ کا سامنا کیا ہے۔ ایسے کوئی اقدام نہیں کریں گے جس سے میڈیا کی آواز بند ہو۔ 15 ماہ میں کسی صحافی کو گولی لگی، نہ ہڈی پستی ٹوٹی، نہ کوئی پروگرام آف ایئر ہوا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سینٹ نے پریس کاؤنسل پاکستان اور صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے تحفظ کے ترمیمی بل منظور کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 5 درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا کہ سیشن کورٹ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حق دفاع کی درخواست پر اگلے ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ عدالت کی منتقلی کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے جوانوں اور افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں خصوصی تقاریب، اعلیٰ حکام کی یادگار شہداء اور شہید اہلکاروں کی قبروں پر حاضری، وطن کے ان سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان کے غیور عوام اپنے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور پوری دنیا میں مقیم کشمیری کل یوم استحصال منائیں گے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ دنیا بھر میں مقیم جموں کشمیر کے عوام اس غاصبانہ اقدام کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارا تعلق چاہے کسی قوم سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی مذہب سے ہو، ہم سب جی جان سے، اپنے پورے ایمان سے اپنی مسجدوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، مندروں میں، گردواروں میں، ساری عبادت گاہوں میں کرتے ہیں دل سے یہ دعا، یہ ملک سلامت رہے اے خدا۔ اس سے جڑی ہے
हमारी बका। ये आज़ाद है तो हम आज़ाद हैं। अपने अपने रंग में इबादत के लिए मांगे दुआ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। 76वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां मुल्क के तूलो अर्ज में जारी। बच्चे, बूढ़े, जवान पुरजोश और पुरअज़्म। मुल्क भर की अक़लियती बरादरी भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए झंडियों, परचमों, कुमकुमों और सब्ज़ सफ़ेद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लोधरा के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब से दरिया के किनारे आबाद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पानी में फंसे हुए 2400 के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी पार्क से मुस्तकबिल के अहदाफ के हुसूल में मदद मिलेगी। आने वाला दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। पाकिस्तान को इस मैदान में आगे बढ़ना है। I would like to commend Chief of the Air Staff and his team for this remarkable contribution, and I'm sure this center will excel, not only excel in times to come, it will become hub of IT activities and artificial intelligence and information technology. A great pleasure to visit this wonderland full of technology, modern skills. एयर कमोडोर डॉक्टर लियाकतुल्लाह ने ब्रीफिंग में बताया कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे के तौर पर मुल्क के लिए कसीरुल-जहती फ़वाइद हासिल करेगा। पाक फ़ज़ाए के सरबराह की अनथक काविशों से इस मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। मंसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा, नौजवानों और आने वाली नस्लों को प्लेटफॉर्म मुहैया करके पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के सफर में अहम संग मील साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री के साथ साथ पार्क एकेडमी लिंकेजेस भी कायम करेगा। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ये मंसूबा एविएशन, स्पेस, साइबर के मैदानों में डिजाइन, तहकीक व तरक्की और इख्तरा को फरोग देने के लिए जरूरी अनासर का इकोसिस्टम फराहम करेगा। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कुदरत ने पाकिस्तान को मशहूर मकामात और दिलकश नज़ारों से नवाजा है। ज़रूरी है कि सियाहत के शोबे को तरक्की देकर अपनी तहजीब, सकाफत और तमद्दुन को दुनिया से रुशनास कराया जाए। इस्लामाबाद में सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं शाहरुख शफी। अर्ज़ पाकिस्तान का हर गोशा कुदरत का हसीन शाहकार और खूबसूरती का एक नमूना है। पाकिस्तान में सरसब्ज़ो शादाब मैदान, फलकबोस पहाड़, सेहत अफजा पहाड़ी मकामात, कलबरूह पर छा जाने वाले रेगिस्तान और खूबसूरत झीलें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई हैं, जो कुदरत की फयाजों से रगबत रखने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इसी सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान को दुनिया की सियाहत का मरकज़ बनाने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खूबसूरत मकामात से नवाजा है। इसकी मिसाल मुल्क के शुमाली इलाकाजात और बर्फपोश पहाड़ हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हदायत की कि वो ऐसे तमाम मुल्कों के तजर्बात से इस्तिफादा करें जिनका सियाहत के शोबे में एक मुकाम है। उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे को तरक्की देकर रोजगार के नए मौके और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा सकता है। Pakistan is a great place for promoting tourism and culture and heritage, and for this
I would encourage our advisor and all government officials to interact with not only their counterparts in our brotherly countries, but also those countries who have really excelled in the field of tourism. Our country is blessed by Allah Almighty with great natural resources. We have scenic beauty all over the northern parts of Pakistan, which can really be converted into great opportunities. इस्लाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इफ्तिताह मुल्क में सियाहत की सनत को दुनिया भर के सियाहों को मुतवज्जो करने के लिए मुआवन साबित होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। कमर ज़मान कायरा ने वज़ीर आज़म को अपना कलमदान के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। कमर ज़मान कायरा ने वज़ीर आज़म को 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुनाकिद होने वाली सरगर्मियों, सेमिनार और आगाही मुहिम बिलखसूस दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों में इस हवाले से आगाही पैदा करने के हवाले से होने वाली तकारीब से आगाह किया। और नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सहाफ़ियों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया। पैमरा तरमीमी बिल 2023 के पीछे अच्छी नीयत है, इंशाअल्लाह ये बिल सेनेट से भी मंजूर होगा। इस्लामाबाद में उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के जमहूरी ममालिक को देखते हुए पैमरा कानून में ज़रूरी तरमीम लाए हैं। ये संजीदा कानून साजी है, इसमें मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये पब्लिक डोमेन का बिल था और हर वक्त पब्लिक रहा। चेयरमैन सेनेट ने मेरी दरख्वास्त पर इसे कमेटी में भिजवाया है। तो PRA ने, तमाम नुमाइंदा जमात तंजीमों ने, मीडिया की, पार्लियामेंट ने, नेशनल असम्बली ने, सब ने यूनानिमसली, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी जहां तमाम जमातें मौजूद हैं, उन्होंने यूनानिमसली इसको पास किया। मैं ये चाहती हूं कि ऑनरेबल सेनेटर्स का भी इसमें राय आए, इसमें इनपुट आए। बिल इस में ये एक कानून साजी एक संजीदा अमल है और इसको मुतनाज़ा मैं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस से 12-13 महीने बिल गुजर कर आया है। इसलिए मैंने ये आज चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त की कि आप इस बिल को सेनेटर्स की राय लेने के लिए, हालांकि फुल हाउस था, वहाँ राय आ सकती थी, सेंस ऑफ द हाउस भी आ सकता था, लेकिन एक प्रोसेस को मुकम्मल करें ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ ना आए और इसको एक डिस्कशन के थ्रू स्टैंडिंग कमेटी सेनेट को भेज दें। तो चेयरमैन सेनेट ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस बिल को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया है। उधर सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 14 बिल मंजूर किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब की दरख्वास्त पर पैमरा तरमीमी बिल मज़ीद गौर के लिए मुतल्लिक़ा कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। I move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Is it opposed? नाज़रीन, सेनेट का इजलास हुआ। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत और आज के बिल में जो है वो 14 बिल मंजूर किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पैमरा तरमीम बिल 2023 के पीछे अच्छी नीयत है, इंशाअल्लाह ये बिल सेनेट से भी मंजूर होगा। दुनिया के जमहूरी ममालिक को देखते हुए पैमरा कानून में ज़रूरी तरमीम लाए हैं और ये संजीदा कानून साजी है, इसमें मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 14 के करीब बिल जो है वो मंजूर करवा लिए गए हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि जो पैमरा तरमीमी बिल 2023 पेश किया गया है, इसके पीछे हमारी एक अच्छी नीयत है और इंशाअल्लाह ताला ये जो बिल है ये सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने कादिर खान मंदुखेल की सरबराही में कायम मुतासरा मुलाजमीन के हवाले से खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर तमाम मुतल्लिका महकमों को फिलफौर अमल दरामद की हिदायत की है। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने कहा कि पार्लियामेंट और इसकी कमेटियों के फैसलों पर अमल दरामद न करना तौहीन पार्लियामान के जुमरे में आता है, जिसकी किसी सूरत कोई गुंजाइश नहीं। कौमी असम्बली में बाजोड़ में दहशत गर्दाना हमले के हवाले से बहस आज भी जारी रही। अरकान ने हमले की भरपूर मजम्मत करते हुए वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कबाइल मुल्क के वफादार हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुस्तक़बिल में इस किस्म के हमलों को रोकने के लिए पायदार इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे होगा।
नाज़रीन, सेनेट के इजलास के हवाले से ही बात करें तो सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ, जिसमें 14 बिल मंजूर कर लिए गए। और आज के सेनेट के इजलास के हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा अरसलान असद हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, अपडेट कीजिएगा, आज सेनेट के इजलास में 14 बिल मंजूर किए गए हैं। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में कानून साजी का आज अमल जारी रहा और खासा मसरूफ दिन रहा। आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बिल समेत मुतअद्दिद बिल मंजूर किए गए। टोटल 14 बिल मंजूर की गई। पैमरा तरमीमी बिल 2023 वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की दरख्वास्त पर मुतलका सेनेट की कायमा कमेटी को मज़ीद गौर के लिए भिजवा दिया गया है। इजलास जैसे आपने कहा कि चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने पैमरा तरमीमी बिल पेश किया। अपोजिशन के सेनेटर्स की जानिब से कुछ एतराज़ किए गए, जिस पर वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि ये एक संजीदा कानून साजी है, वो जल्दबाजी में कानून साजी नहीं करना चाहती। उन्होंने खुद जो मीडिया सेंसरशिप भुगती है, उनकी पूरी पार्टी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ये भुगती है मीडिया सेंसरशिप। वो किसी सूरत में ये नहीं चाहेंगी कि उनके दौर में या उनकी वजह से किसी सूरत में मीडिया की आज़ादी पर कोई हर्फ आए। उनका कहना था कि इन 15 माह में किसी साबका दौर की तरह किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद नहीं किया गया, किसी की नाक की हड्डी नहीं टूटी गई, किसी को गोली नहीं मारी गई। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की चेयरमैन सेनेट को कि वो ये बिल मज़ीद गौर खोज के लिए सेनेट की कायमा कमेटी को भिजवा दें, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने उनकी दरख्वास्त पर मुतलका कायमा कमेटी को बिल रेफर कर दिया। इसके अलावा वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद 3 कानूनी बिल्स भी पेश किए, जिनमें प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2023, सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल समेत प्रेस, अखबारात, खबर रसाई एजेंसियाँ और कुतुब रजिस्ट्री तरमीमी बिल पेश किया, जिनकी ऐवान ने मंजूरी दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बाजोड़ बम धमाके के मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से जो शहदा हैं उनके लवाकिन के लिए 20 लाख और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए के रकूम का ऐलान किया। खारजा उमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी कर ने काले धन को सफ़ेद करने और दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतल्लिक अथॉरिटी के क़याम के लिए नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी बिल 2023 पेश किया, जिसकी ऐवान ने मंजूरी दी। आपको ये बताता चलूँ कि कौमी असम्बली पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुकी है। मंजूर होने वाले दीगर 10 कानूनी बिल्स में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीम बिल, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तरमीम बिल, इंज़बात दरामदाद बरामदाद तरमीमी बिल, निशानात तिजारत बिल, हज और उम्र के इंतज़ाम के कानून से मुतल्लिक कानून वज़ा करने का बिल, पाकिस्तान रोयत हिलाल बिल, तारीकुल वतनी तरमीमी बिल, गैस की चोरी और रोकथाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल, गन एंड कंट्री क्लब बिल और नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन NLC बिल 2023 शामिल हैं। इन तमाम बिल्स की कौमी असम्बली पहले ही मंजूरी दे चुकी है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी तालीम और पेशवराना उमूर जो हैं सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी ने हायर एजुकेशन तरमीमी बिल से मुतल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट, जिसके वो खुद चेयरमैन हैं, की रिपोर्ट ऐवान में पेश करने से माजरत करते हुए कहा कि बिल में चंद गलतियां हैं जिनकी इस्लाह के लिए वक्त दरकार होगा। इसी तरह इस्लामाबाद के जो पिम्स हॉस्पिटल है उसमें एयर कंडीशन के निज़ाम की खराबी से मुतल्लिक सेनेटर राना मकबूल अहमद के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर मुमलिकत कानून जो है शादत अवान ने बताया कि अस्पताल का नया AC सिस्टम जून के आखिर में उसको फाल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फाल नहीं हो सका। आइंदा 1-2 माह में वो फाल हो जाएगा। बलूचिस्तान में सैलाब के बाद मुख्तलिफ शाहराओं की खराब सूरत हाल से मुतल्लिक सेनेटर दिनेश कुमार के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि बलूचिस्तान की तरक्की वज़ीर आज़म के दिल के बहुत करीब है। हम सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भरपूर तावन करेंगे। मौसमाती तब्दीली की वज़ीर सेनेटर शेर रहमान ने एक जज के घर में शदीद घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली 10 साला बच्ची रिजवाना का मामला ऐवान में उठाते हुए कहा कि हमें हैरत है कि इस अहम तरीन इंसानी मामले पर आला तरीन अदालत ने अज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया। जो दूसरों को इंसाफ फराम करते हैं उन्हें इंसाफ पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि मरदमशुमारी से मुतल्लिक सेनेटर रज़ा रब्बानी ने जब एक नुक्ता एतराज़ पर एक अपना मौक़िफ़ पेश किया कि मरदमशुमारी की वजह से इंतखाबात में ताख़ीर का इम्कान है, तो उस पर वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने कहा कि नई मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर आम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वक्फ़े सवालात भी हुआ, उसमें मुख्तलिफ सेनेटर्स ने मुख्तलिफ सवालात किए जिनके वज़ीर मुमलिकत शादत अवान ने जवाब दिए। अब सेनेट का इजलास इतवार के रोज़ दिन 12 बजे होगा। जी
बहुत शुक्रिया अरसलान असद, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। नुमाइंदा PTV न्यूज़ अरसलान असद हमें सेनेट में कानून साजी के हवाले से बता रहे थे कि आज कानून साजी के हवाले से इंतहाई अहम दिन रहा है। वज़ीर इत्तलात ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 के हवाले से जो बिल पेश किया, उस पर जो एतराज़ात सामने आए उस पर भी उन्होंने तफसीली बात की और कहा कि ये एक इंतहाई अहम और एक संजीदा बिल है और ये बराए मुखालिफत की नज़र इसको नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 माह हमारी हुकूमत को हुए हैं, लेकिन जो माहौल पहले दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को मैसर था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये जो बिल है ये सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और उनकी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने से मुताल्लिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि मुकदमा मुंतकली से मुताल्लिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जिसके हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। मामला कानून से आगे जाकर फरीकैन की रजामंदी पर आ चुका है। समाअत के आगाज़ पर अदालत के इस्तफसार पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके मुवक्किल की तमाम दरखास्तों की समाअत करते हुए फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सेशन कोर्ट को हिदायत की है कि वो दोबारा सुनकर केस का फैसला करे। अदालत ने तोशाखाना केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि फेसबुक पोस्ट के हवाले से ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ लगाए गए इल्जामात बाद नज़र में दुरुस्त नहीं है। फैसले में FIA को इस हवाले से जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म भी जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर समाअत के बाद अपना फैसला महफूज किया था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में जारी तोशाखाना केस पर फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की चेयरमैन PTI की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मुल्जिम का हक के दिफा बहाल करने की दरखास्त पर अगले हफ्ते के लिए फरीकैन को नोटिस जारी करने का हुक्म जारी किया है। उधर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर PTI के वकील ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत की इस्तदा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील अली गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुछ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, अगर वो मिल जाए तो हम बहस कर सकेंगे। हमें 3 से 4 दिन की मोहलत दी जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मतलूबा दस्तावेजात चेयरमैन PTI के वकील को फराहम करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर नोटिस जारी कर रखा है। नोटिस के मुताबिक PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कई बार तहरीक इंसाफ को याद दहानियों के नोटिस जारी किए थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क भर से गलियात और कश्मीर की तरफ सफ़र करने वालों और बारहकहू की मकामी आबादी के लिए इनकलाबी इक़दाम 6 अरब 25 करोड़ की लागत से बारहकहू बाईपास का इफ्तिताह कर दिया गया। जी हाँ, इस इफ्तिताह से अहले इलाका इसकी तकमील पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। दिखाते हैं आपको वकार हैदर की ये रिपोर्ट। इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 4.2 किलोमीटर और इसमें एक ओवरहेड ब्रिज भी बनाया गया है जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब है। हम इस बाईपास पर सफ़र करते हैं और देखते हैं कि इस नए बाईपास से आवाम को कितनी सहूलत मुयसर आई है। ये ज़रूरत थी हमारी, ये फ्लाईओवर बाईपास इधर की ज़रूरत थी। और दोपहर में जो स्कूलों से कॉलेज से गाड़ियाँ आती थी वो 2-2 घंटा 3-3 घंटे गाड़ियाँ फंसी रहती थी और बच्चे घरों को नहीं पहुंच पाते थे। वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बाराको के लिए और 17 मील और जो मरी मुजफ्फराबाद लोग जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक मंसूबा है। पहले जब इसी रोड पे हम आते थे तो हमारे यहाँ पे आधा घंटा पौन घंटा लग जाता था। हमने इस पे सफ़र भी करा है तो हमने देखा है कि हमारे 5 से 7 मिनट बस मैक्सिमम ये फासला है। और यहाँ बाराकों में बहुत रश होता था और खासकर जुम्मा हफ्ता और इतवार वाले दिन रोड क्रॉस करना पैदल लोगों के लिए मुश्किल होता था। मरीजों को, बच्चों को, स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा को इंतहाई तकलीफ होती थी। बाहर से आने वाले लोग थे, मरी में जाने वाले, कश्मीर में जाने वाले, उनके लिए बहुत सी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। ये है बाराकहू बाईपास का इख्तितामी पॉइंट। अहले इलाका भी खुश है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनके लिए ये ऐसा इक़दाम किया है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वतन अजीज़ पर अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस
منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد ملک کی داخلی اور سلامتی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاکستان پولیس کے بہادر جوانوں اور افسران کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ سماج دشمن عناصر کی روک تھام میں پولیس کا کلیدی کردار ہے۔ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج پوری قوم یوم شہدائے پولیس پر وطن کے فرض شناس سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، جنہوں نے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردی کی جنگ میں جہاں فوج پاکستان کی لازوال قربانیاں ہیں، وہیں پولیس کے جوانوں نے بھی ہر موقع پر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان کے غیور عوام اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آج کے دن ہم وطن عزیز کے تمام بیٹوں، بیٹیوں اور ان کے اہل خانہ کو اپنے ملک کی خدمت پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، کنٹرول لائنز کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف کل یوم استحصال کشمیر منائیں گے۔ بھارت نے 4 برس پہلے اپنے آئین کی دفعہ 370 اور 35 کو منسوخ کر دیا تھا، جس کے تحت جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی اور مقبوضہ کشمیر کو نئی دلی کے براہ راست قبضے میں لے لیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ 5 اگست کو یوم سیاہ منانے کا مقصد بھارت کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ اس نے علاقے پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے اور کشمیری اپنے مادر وطن پر اس غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے عبداللہ شاد نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے مودی سرکار نے مقبوضہ وادی کو ہڑپ کرنے کی مذموم کوشش کی۔ آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کو جدا گانہ حیثیت حاصل تھی اور بھارت کا کوئی شہری یہاں زمین حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس شک کے تحت کشمیریوں کو الگ پرچم رکھنے کا حق بھی تھا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی غیر آئینی تنسیخ جنیوا کنونشن 4 کے آرٹیکل 49 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نئے قوانین کے تحت 50 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو مقبوضہ جموں کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی طرز پر 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کے لیے خصوصی ہاؤسنگ کالونیاں بنائی جا رہی ہیں۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ہندو اکثریت پر مشتمل ایک نیا ڈویژن بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں کشتواڑ، اننت ناگ اور کلگم کے اضلاع شامل ہوں گے۔ جموں اینڈ کشمیر لینگویج بل، کنٹرول آف بلڈنگ آپریشن ایکٹ، جموں کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ اور فارسٹ رائٹس ایکٹ میں تبدیلیوں سے مقبوضہ کشمیر کو مسلم اکثریت سے ہندو اکثریت علاقے میں بدلنے کا گھناؤنا منصوبہ آخری مراحل میں ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے یہ مقبوضہ خطہ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کو بنیادی انسانی سہولیات حاصل ہیں اور نہ ہی مذہبی آزادی۔ تجاوزات مہم کے نام پر کشمیریوں سے ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوجی نام نہاد سرچ آپریشنز کے نام پر روز چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کشمیری صحافیوں کو کالے قوانین کے تحت جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے۔ ان کے معدنیاتی ذخائر پر دلی سرکار کا قبضہ ہے۔ بھارتی ہتھ کنڈے ایک طرف، کشمیری پرعزم ہیں کہ آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ مقبوضہ اور آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال منا کر کشمیری قوم اقوام عالم کی توجہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی جانب مبذول کرا رہے ہیں۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مشیر امور کشمیر گلگت و بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی داستانیں رقم کی ہیں، وہ کبھی بھی کشمیریوں کا حق خود ارادیت ختم نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد میں حریت رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان نے کہا کہ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر کشمیر کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ نوجوان نسل کو کشمیر کے مقدمے سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ حریت رہنماؤں نے اس موقع پر جدوجہد آزادی کی حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ حریت رہنما نے کہا کہ آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کشمیری عوام کا حق ہے۔ کشمیر کی جداگانہ حیثیت کو ختم کرنے کا اختیار بھارت کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں حریت رہنما بھی موجود تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتا آیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ نوجوان نسل کو اس مسئلے کی اہمیت، یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں ہے اور اب تک کیوں پینڈنگ ہے، اس حوالے سے نوجوان نسل کو پوری طرح سے روشناس کروایا جائے، ایسا کہنا ہے مشیر امور کشمیر گلگت بلتستان کا۔ اس
मौके पर हुर्रियत रहनुमा ने भी बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस अंदाज में जद्दोजहद आज़ादी के लिए कश्मीरी लोगों की हिमायत करता है उस पर वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान का भी और आवाम का भी। और उन्होंने ये कहा कि 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा और इस दिन को हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर को यौम स्याह के तौर पर जो है वो याद रखा जाए। उनका ये भी कहना था कि आज़ादाना और मुनसिफाना रायशुमारी कश्मीरी आवाम का हक है और जो जुदागाना हैसियत है कश्मीर की उसको भारत किसी भी तौर ख़त्म नहीं कर सकता और ये जुदागाना हैसियत का जो इख्तियार है वो भारत के पास कतई तौर पर नहीं है। जी नाज़रीन, भारत ने 4 बरस पहले अपने आइन की दफ़ा 370 और 35A को मनसूख कर दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी और मकबूजा कश्मीर को नई दिल्ली के बराह रास्त कब्जे में ले लिया था। जबकि 5 अगस्त को यौम स्याह मनाने का मकसद भारत को ये वाज़े तौर पर पैगाम देना है कि इस इलाके पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है भारत ने और कश्मीर किसी सूरत इस कब्जे को कबूल नहीं करते और कश्मीरी अपने मादरे वतन पर इस गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। जबकि नाज़रीन, आलमी फोरम पर पाकिस्तान हमेशा से ये मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। आलमी बिरादरी की जो खामोशी है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से भारत की जानिब से मकरू अज़ाइम का प्रचार किया जा रहा है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और आलमी फोरम पर पाकिस्तान की जानिब से जो मौसर अंदाज में मुकदमा पेश किया है वो नौजवान नस्ल को कश्मीर के मुकदमे से रूशनास कराने की ज़रूरत है। और इस मौके पर जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया गया। जैसे कि कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। मशीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ने आज भी इस हवाले से कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की दास्तानें रकम की हैं और वो कभी भी कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत ख़त्म नहीं कर सकता। नाज़रीन, यूसुफ नसीम साहब हुर्रियत रहनुमा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप ठीक है? जी सर, बहुत शुक्रिया। यूसुफ, कश्मीरियों को जो जज्बा आज़ादी है उसमें कोई दौराए नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आया है कि कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, कश्मीरियों के हम हमेशा से उनके साथ हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और भारत जिस तरह से कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदलने की कोशिश कर रहा है उसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन सर, सबसे अहम सवाल ये है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से ये इकदाम किया गया था, घिनौना इकदाम किया गया था, लेकिन उसके बाद यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी बनाया जाता है, आलमी फोरम पर आवाज़ भी बुलंद की जाती है, कश्मीरी खुद भी जद्दोजहद आज़ादी के तौर पर एहतजाज करते हैं, हड़ताल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत होश के नाखुन नहीं लेता। आलमी बिरादरी, इंसानी हुकूक की तंजीमें जो जानवरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, लेकिन यहाँ पर इंसानों के साथ जो सलूक हो रहा है कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बेशक आपने मजा फरमाया, लेकिन हकीकत यह है कि बुनियादी तौर हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है और इस मार्केट की वजह से जो 2-4 बड़े मुल्क हैं जो दुनिया में इंटरफेयर करते हैं ऐसे मामलात को, तो उनको मिस गाइड करके पता नहीं किस तरह खामोश करवा दिया है इंडिया ने। लेकिन ये बात देर तक नहीं चल सकेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर हिंदुस्तान 75 साल में कश्मीर को अपना अटूट अंग नहीं बना सका, अगर वो 75 साल तक कश्मीरियों को मोटिवेट नहीं कर सका, एक गैर फितरी अमल से उसने फौज पर जरिए कब्जा कर रखा और कभी उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को तस्लीम किया, कभी पाकिस्तान के साथ डिफरेंट डिक्लेरेशंस में उसने वाज़ेह किया कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और इसका हल हम मुज़ाकरात से करेंगे और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस की रोशनी में करेंगे। तो लेकिन वो पाकिस्तान को की आंखों में भी धूप जलता रहा और कश्मीरियों को भी धोखा देता रहा। बिल आखिर उसने जब कश्मीरी तंग आमद ब जंग आमद तो कश्मीरियों ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर के एन मुताबिक काबिज अफवाज के खिलाफ बंदूक उठाई और जो बिल्कुल चार्टर के एन मुताबिक थी, लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी ने हमें यह कह दिया कि दिस इज एन पॉलिटिकल इशू और ये किसी भी बंदूक से हल नहीं होगा, ये हक खुद इरादियत का मसला है। तो इस तरह यकीनन हमें OIC ने भी यकीन दिलाया, दुनिया की बहुत सारी तंजीमों ने जो ह्यूमन राइट्स पर काम कर रही हैं उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर हिंदुस्तान को तंबे किया और यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उनकी 2 रिपोर्ट्स आई जिसमें हिंदुस्तान के साले जुल्म और तशद्दुद की बात की गई। लेकिन मैं आता हूँ वापस ये 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल या यौम स्याह कश्मीरी मना रहे हैं, ये असल बात ये है कि आर्टिकल 370 और 35A हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है हक खुद इरादियत। लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिसके जरिए एक आर्जी इल्हाक था महाराजे का और
इंडियन यूनियन का, और जब उन्होंने ये खत्म कर दिया और 10 लाख फौज से कश्मीर पर कब्जा कर लिया और कश्मीरियों से कश्मीरियत छीन ली, उनका कल्चर छीन लिया, उनकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में चेंज करने की साजिश की और फिर इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया कि शायद फिर वहाँ बहुत तहाशा पैसा इस्तेमाल किया और पॉलिटिकल करप्शन की वहाँ, तो लेकिन उसके बावजूद आज तक वो एक फौजी कम नहीं कर सका और न कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत से कम कोई चीज कश्मीरी मानने के लिए तैयार हो सकता है। एजेंट्स होते हैं दुनिया में हर जगह, जो तारीखें चली कुछ लोग होते हैं एजेंट्स जो एजेंट्स का काम इंडिया के लिए करते हैं, लेकिन गालिब अक्सरियत कश्मीरियों की जो है वो टोटली इस बात की मुतमन्नी है कि यूनाइटेड नेशन के करारदादों के मुताबिक कश्मीर का फैसला किया जाए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान वज़ीर आपके और मेरे और दुनिया के अजीम कायद पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और कश्मीरी क़यादत ने कहा कि कश्मीरियों का और पाकिस्तान का रिश्ता जिस्म और रूह का है, इसको दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। लिहाजा मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आज जो हिंदुस्तान ने ये 5 अगस्त 2019 को फैसला किया, ये उन्होंने अपनी आइन का भी वायलेशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी भी वायलेशन की, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस चल रहा है कि ये आइन की वायलेशन थी। ठीक, अच्छा यूसुफ नसीम साहब, यहाँ पर ये सवाल बड़ा ज़रूरी है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। यूरोपीय यूनियन की बात करें, बरतानवी पार्लियामेंट की बात करें, बारहा ये बात बरतानवी पार्लियामेंट में उठाई गई कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो बहुत बड़ा जुल्म है। फिर हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस बारहा ये बात कर चुके हैं कि कश्मीर का जो मसला है उसका कोई फौजी हल नहीं है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों मिल बैठे और इस पर बात करें। सर, ये जो मोमेंटम है, ये जो उनकी जानिब से बार बार ये बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं इस मोमेंटम को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? 1.5 से 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, हमारे पास OIC का फोरम है, हमारे पास SCO का फोरम है, बड़ी मजबूत और जामी आवाज वहां से जा सकती है। इस मोमेंटम को कैसे लेकर चलना चाहिए ताकि भारत अपने आप को जवाब दे समझ सके? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जिस तरह पहले तो अगर आज से आप 20 साल पहले कश्मीर का नाम लें तो किसी के ज़हन में नहीं था, लेकिन जब कश्मीरियों ने 1988 में जिस तरह मैंने अर्ज की कि अपने हकूक के लिए आवाज उठाई, बंदूक उठाई, तो उसके बाद ये मसला आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को पता लगा कि वाकई ये यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की बात सामने आई और फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आई, और फिर आपने देखा कि हमारी आला क़यादत में से 1 दर्जन से ज़ायद बड़े लीडरों को शहीद किया गया, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को शहीद किया गया, वकला को, जर्नलिस्ट को शहीद किया हिंदुस्तान ने। तो ये सारी चीजें आप दुनिया के सामने आ चुकी हैं। अब मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि भारत ने बदला लिया कि पाकिस्तान बाइसत वकील के और बाइसत फरीक के मजबूत आवाज उठा रहा है दुनिया के हर ऐवान में, क्योंकि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ने हिंदुस्तान के कहने पर फरीक बनाया और कश्मीरियों ने अपनी खुशी से वकील बनाया। पाकिस्तान की डबल पोजीशन है और हिंदुस्तान की पोजीशन एज ए पार्टी के सिर्फ काबिज होने के नाते है, और तो प्रिंसिपल पार्टी जो है वो कश्मीरी है। तो लिहाजा ये जंग हिंदुस्तान हार चुका है। अब इसमें जरूरत डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर हमारे एफर्ट्स की जरूरत है। आज आप ये जानकर खुश होंगी कि हमारे कश्मीरी पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में ये हैं वो अब जुड़ चुके हैं तारीख आज़ादी कश्मीर के साथ। दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे हमारा जो भी आदमी दुनिया के जिस मुल्क में, मसलन अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, अरब अमारात, सऊदी अरबिया, जहाँ भी कश्मीरी पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ के लीडरों को बिल्कुल कश्मीर की आवाज मान के इस वक्त बिल्कुल जी, जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं, जिस मुल्क में मौजूद हैं, जिस खित्ते में मौजूद हैं, वह भरपूर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उन ममालिक को बता रहे हैं, वहाँ की पार्लियामान को आगाह कर रहे हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उस जुल्म जबर की कहीं मिसाल नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया यूसुफ नसीम साहब, नामवर हुर्रियत रहनुमा, आप हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी डिटेल में हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, भारतीय अदालतों की अगर बात करें तो भारतीय अदालतें भी मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंदों की कठपुतली बनकर रह गई हैं। अदालती हुक्म पर बनारस की मारूफ और तारीखी गयान वापी मस्जिद का मुतनाज़ा साइंसी सर्वे शुरू कर दिया गया है। गयान वापी मस्जिद के साइंसी बुनियाद पर सर्वे का फैसला बनारस की जिला अदालत ने सुनाया था, ताहम मस्जिद की इंतजामिया ने फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज मस्जिद के साइंसी सर्वे के फैसले की तौसीक की थी। मस्जिद इंतजामिया ने फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। मस्जिद इंतजामिया ने नाम नेहाद साइंसी सर्वे को मुस्तरद करते हुए इसके बाइकॉट का ऐलान किया है। मुसलमानों का कहना है कि ज्ञान वापी मस्जिद के मामले को भी ठीक उसी तरफ ले जाया जा रहा है जैसा अयोध्या की बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था।
कानूनी माहिरीन के मुताबिक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मिथरा की ईदगाह, कुतुब मीनार, ताजमहल और बहुत सी दीगर मुस्लिम इमारतों, इबादतगाहों और मकबरों पर हिंदुओं के दावों का कानूनी रास्ता हमवार हो जाएगा। प्राचीन जश्न आज़ादी को भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए मुल्क भर की अक़लियती बिरादरी भी पुरजोश अंदाज में तैयारियां कर रही है। नए जारी होने वाले प्रोमो में वतन अजीज़ के लिए अक़लियती बिरादरी की तरफ से की जाने वाली खिदमात को उजागर किया गया है। जी हाँ, अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदा अफराद प्रोमो में पाकिस्तान से अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका। हमारा ताल्लुक चाहे किसी कौम से हो, किसी रंग से हो, किसी नस्ल से हो, किसी मजहब से हो, हम सब जी जान से अपने पूरे ईमान से अपनी मस्जिदों में, अपनी कलीसियाओं में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सारी इबादत गाहों में करते हैं दिल से ये दुआ, ये मुल्क सलामत रहे आए खुदा, इससे जुड़ी है हमारी बका। ये आज़ाद है तो हम आज़ाद हैं। अपने अपने रंग में इबादत के लिए मांगे दुआ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। और जनाब, कौमी परचम की अहमियत और उसके तकद्दुस के हवाले से लाहौर से वर्दा सलीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आप भी देखिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की मंजूरी 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली के इजलास में दी गई, जिसकी सदारत खुद बाने पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। पाकिस्तान के कौमी परचम पर चांद का निशान मुमलिकत खुदादाद की अजमत की अलामत है। उस मुल्क की अक़दार और रिवायात का वो पासदार है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि यहाँ पर बिला इम्तियाज सबके हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। जश्न आज़ादी के मौके पर सब्ज रंग के अलावा दूसरे रंगों में भी कौमी झंडियाँ तैयार करके मुख्तलिफ मकामात पर आवेजा की जाती हैं, जो कतन दुरुस्त नहीं। यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान घरों और बाजारों को कौमी परचम और झंडियों से सजा तो लिया जाता है, मगर अक्सर तकरीबात खत्म होने के बाद उनको हिफाजत से उतारा नहीं जाता। हमारा कौमी परचम हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी और उमंगों का अलम बरदार है। कौमी जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सीपैक मंसूबे की 10 साला तकरीबात के मौके पर पाक चीन मुश्तरका प्रोडक्शन की पहली फिल्म बाटी गर्ल का प्रीमियर इस्लामाबाद में हुआ। चीन और पाकिस्तान के आला हुकाम समेत लोगों की बड़ी तादाद ने प्रीमियर में शिरकत की। पाकिस्तान टेलीविजन फिल्म का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। बाटी गर्ल यानी दोस्त लड़की फिल्म चाइना फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन और हुनर कदा फिल्म्स ऑफ पाकिस्तान ने तैयार की है। PNCA इस्लामाबाद में फिल्म की प्रीमियर की तकरीब में हुनर कदा फिल्म्स के जमाल शाह और चीनी हुकाम ने बताया कि ये फिल्म पाकिस्तान और चीन के लोगों के दरमियान दोस्ती पर मबनी है। इस फिल्म की कहानी पाक चीन दोस्ती की तरह हमदर्दी और तरक्की से भरी हुई है। फिल्म की अहमियत जो है वो ये है कि ये पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन है चाइना के साथ, और चाइना दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म मार्केट है। PTV फिल्म के ज़रिए PTV और ज़्यादा कमिटेड है। 四川中国四川发生了汶川大地震。 उनका काफ़ी टाइम से ड्रीम था to come in Pakistan and make the movie and show their feelings toward the Pakistan and to show the Pakistan the brother relationship between China and Pakistan. बहुत अच्छा जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ चाइना का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न एक स्टेट ओन मीडिया चैनल है, जिन्होंने इस PTV के जॉइंट वेंचर को प्राइवेट चाइनीज़ मीडिया के साथ इन्होंने लॉन्च किया और बहुत अच्छी मूवी थी। दोस्ती ज़िंदाबाद। शहरियों ने फिल्म को खूब सराहा और ऐसी मुश्तरका काविशों को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। हमें खुशी है कि कम से कम वहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के आर्टिस्ट मुश्तरका जब काम करेंगे तो अल्लाह करेगा मौके दोनों को मुश्तरका तरीके से मिले। मेन जो यही था कि पाक चीन दोस्ती के साथ में मिलाया गया कि पाक चीन दोस्ती है और ये इंशाल्लाह आगे तक चलेगी और इसको आगे जाना चाहिए। फिल्म में जो अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी लगी है। पहले तो चाइनीज़ और पाकिस्तान फ्रेंडशिप जिंदाबाद,
ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہے، انکریجمنٹ ہے کہ ہمیں چاہے کوئی بھی فیلڈ ہے ہم اس میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. پہلی مووی ہے پاکستان کی جو کہ فٹ بال بیسڈ ہے اور جو کہ کافی زیادہ پروموٹ کیا فٹ بال کو، لیڈیز فٹ بال کو اسپیشلی. مجھے یہ مووی بہت اچھی لگی. میں چاہتی ہوں کہ لوگ آئے، اسے دیکھیں، اسے پسند کریں اور اس کو اتنا اپریشیٹ کریں تاکہ اور بھی اس طرح کی پاکستانی موویز بنے. پی ٹی وی کی آفیشیل میڈیا پارٹنرشپ کی یہ فلم اب جمعے سے سینما گھروں کی زینت بنے گی. پاکستان اور چین کی مشترکہ پروڈکشن میں بننے والی اس فلم سے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دوستی اور تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، موسم کی بدلتی رتوں کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم کشمیر، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. چلیے جی، کچھ آگے آپ کو بہاول نگر میں کی اطلاع دیتے ہیں کہ وہاں پر دریائے ستلج جو پانی ہے ان کی سطح میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور پانی کا بہاؤ مزید تیز ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں بستیاں سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئی ہیں. ریسکیو جانباز فرنٹ لائن پر کردار ادا کرنے میں مصروف ہیں اور اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ رانا فیصل رحمان سے جو دریائے ستلج پر بہاول نگر کے مقام پر موجود ہیں. فیصل، صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا. دریائے ستلج کے پانی میں ایک بار پھر جو ہے اضافہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت ہیڈ سلمانکی پر جو ہے وہ تقریباً 76,035 کیوسک کی آمد ہے. اسی طرح جو ہے 65,877 کیوسک کی جو ہے اخراج ہے. پانی کا ریلا جو ہے وہ بہاول نگر کی طرف بڑھ رہا ہے. اس وقت تک جو ہے بہاول نگر کی 3 تحصیلوں کو جو ہے وہ شدید متاثر کیا ہے. پہلے منچن آباد کی کئی ایسی بستیاں جو ہیں ملکہ دریائے ستلج کی ان کو متاثر کیا ہے. فصلوں کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہے. بستیوں کو جو ہے کئی ایسی بستیاں جو ہے جن کو چاروں اطراف سے گھیر لیا ہے. اس کے بعد جو ہے ریلا جو ہے بہاول نگر کی طرف بڑھا اور بہاول نگر میں جو ہے وہ کئی بستیوں کو متاثر کرتے ہوئے جو ہے فصلوں کا نقصان کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا. اور اسی طرح جو ہے بہاول نگر کی جو تحصیل جو ہے چشتیاں وہاں پر بھی جو ہے کافی نقصان ہوا ہے. یہاں پر جو ہے کئی ایسی بستیاں ابھی بھی موجود ہے بہاول نگر، منچن آباد اور چشتیاں کی، جہاں پر پانی نے جو ہے وہ چاروں اطراف سے جو ہے گھیرا ہوا ہے اور شدید جو ہے نقصان کیا ہے. وہاں پر ریسکیو 1122 کے جانباز جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت تک ریسکیو 1122 نے جو ہے 4185 لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے. محفوظ مقامات پر جو ہے مرد و خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ منتقل کیا ہے. اس کے علاوہ 8000 سے زائد اینیملز کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. اور جو ریسکیو 1122 کے جانباز جو ہے وہ الرٹ دکھائی دے رہے ہیں اور لوگوں کی مدد میں جو پیش ہے. بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ادھر لودھرا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لودھرا کے مقام پر 60,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے اور سیلاب سے دریا کے کنارے آباد دیہات زیر آب آ گئے ہیں. بالکل، اور ریسکیو 1122 نے ضلع لودھرا میں سیلاب میں پھنسے ہوئے 2400 کے قریب لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. اب مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، عبداللہ ڈاہا ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہم انہی سے جان لیتے ہیں. جی عبداللہ ڈاہا، آگاہ کیجیے گا تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد لودھرا کے مقام پر دریائے ستلج میں اس وقت 60,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے جو کہ 1988 کے بعد سب سے بڑا ریلا ہے. دریائے ستلج کے کنارے آباد 20 کے قریب دیہات متاثر ہوئے ہیں اور بند ٹوٹنے سے فصلوں اور گھروں کو نقصان پہنچا ہے. اب تک ریسکیو 1122 نے 2400 کے قریب سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے. 18 تو 20 ایکڑ رقبہ سارا بڑھ گئے. اندر بعد دریا دے آتے ویچے کچھ رقبہ وہ بھی کاش کریں لیا سے ٹویل آئی بجلی آئی. ریسکیو والے نے سارے نال اچھا تعاون کیتے، اچھا سا کو ریلیف دیتے. سارے جانور باہر گاٹ ہیں. گھروں میں پانی آ گیا، ہم نے 1122 والوں کو بلایا، انہوں نے ہمیں نکالا. ہمارے جانور تھے تو وہ جانور بھی جو نکالے اور ہمارے ساتھ بڑی محنت کی. فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، کافی سارے یہاں پہ مقامی لوگ تھے ان کو باہر نکالا گیا ہے. لودھرا کی ضلعی انتظامیہ نے سیلابی ریلے سے بچنے کے لیے دریائے ستلج کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے ساتھ 26 امدادی کیمپ قائم کر کے ان میں تمام ضروری سہولتوں کو یقینی بنا دیا ہے. سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دریائے ستلج کے کنارے پر موجود آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل اور فلڈ ریلیف کیمپ قائم کرنے کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پانی کی سطح کو مسلسل مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے. ناظرین، پروگرام کے وقت اختتام کو پہنچا. ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ دیکھتے رہیے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے PTV نیوز.